Hello student, today we will discuss about cardiac cycle. Before explaining cardiac cycle, first recall the internal structure of human heart कि internal कैसा था हमारा human heart, क्योंकि जो cardiac cycle है नेम से क्लियर हो रहा होगा आपको कि कौन कौन से cardiac इवेंट होते हैं ड्यूरिंग टू सक्सेसिव या ड्यूरिंग सक्सेसिव हार्ट बीट, दैट इज cardiac cycle. First come over the definition of cardiac cycle. Cardiac cycle is defined as event operated in heart during successive heartbeat. What do you mean by successive heartbeat? कि एक हार्ट बीट स्टॉप हुई और नेक्स्ट हार्ट बीट शुरू होने तक पूरे के पूरे एक हार्ट बीट में क्या क्या इवेंट होते हैं. तो ड्यूरिंग टू सक्सेसिव हार्ट बीट जो इवेंट ऑपरेट हो रहे हैं हार्ट के अंदर, दैट फिनोमेना या दैट इवेंट इज सेड टू बी कार्डिक साइकिल. तो कार्डिक साइकिल के अंदर हम मेजर टू इवेंट पढ़ने वाले हैं कि कार्डिक साइकिल के अंदर जो हार्ट के चैम्बर हैं, यू ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस सेगमेंट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल. तो ड्यूरिंग कार्डिक इवेंट, ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल, हार्ट अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ड्यूरिंग वन बीट. तो नाउ कम ओवर the major event operated at the term used for heart contraction of heart chamber is systole. Next we use term systole for contraction. ये बार बार टर्म आएंगे तो इसको माइंड में रखिएगा आप. एंड फॉर रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर वी यूज टर्म रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर वी यूज टर्म डायस्टोल. तो इफ auricle get contract then we use term auricular systole. If ventricle get contract then we use term ventricular systole. Or when the chambers are under rest or in relaxed condition we use term diastole. So before explaining cardiac cycle again I recap the previous internal section of human heart कि human heart में किस किस तरह के इवेंट होते हैं. तो फटाफट हम रफली ड्रॉ करेंगे human heart बच्चों, ताकि आपको इवेंट क्लियर हो सके कि ड्यूरिंग वन बीट किस किस तरह के इवेंट ऑपरेटेड होते हैं ड्यूरिंग वन हार्ट बीट. तो नाउ कम ओवर द इंटरनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट. दिस इज द इंटरनल सेगमेंट एंड द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच थिकर देन राइट हाफ because it participate in systemic circulation. तो this is the generalized diagram of human heart. just समझाने के लिए मैंने यहाँ पे draw किया है. This is the opening of superior vena cava which is said to be precaval, and this is the opening of inferior vena cava, and this is the opening of coronary sinus, and here is the opening of pulmonary artery, pulmonary vein which is 4 in number. This is right and left pulmonary vein. These are the two right pulmonary vein and these are the left pulmonary vein which carry oxygenated blood or drain oxygenated blood in left auricle. So this is right auricle, this is a left auricle, again right ventricle, and this chamber is said to be left ventricle. From here a trunk is arise which is said to be pulmonary trunk which further send deoxygenated blood to the heart for oxygenation, and its opening is guarded by semilunar wall. Again here I draw with black pen ताकि आपको confusion ना हो. This is the major artery or principal artery which carry oxygenated blood to the all body parts, and this is the opening of pulmonary artery which carry deoxygenated blood to the lungs for oxygenation, and this is aorta and its both opening is guarded by semilunar valve. Here the position of AV valve, auriculoventricular valve. Here the position of AV valve, tricuspid valve. We use term right auriculoventricular valve. Here the bicuspid valve which is also said to be mitral valve, or technically it is said to be left
ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेगमेंट में डिस्कस कर चुके हैं. हेयर द ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, these openings are guarded by semilunar wall. And here the opening of coronary sinus, this is the opening of coronary sinus which is guarded by valve of Thibesius, and the inferior vena cava which is said to be post caval is guarded by valve of Eustachius. तो ये सब हम पढ़ चुके हैं. क्योंकि कार्डिक साइकिल में ये टर्म दोबारा से यूज होंगी इसीलिए मैंने आपको एक बार रिकैप कराया. नाउ कम ओवर द इवेंट ऑपरेटेड इन कार्डिक साइकिल. कौन कौन से इवेंट ऑपरेट होते हैं कार्डिक साइकिल में? नाउ द कम ओवर इवेंट्स operated in cardiac cycle during two successive heartbeat या during one beat. what happened in heart chamber to pump the blood to all body parts? तो फर्स्ट इवेंट यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा बात करें तो प्रीवियस जो सेगमेंट किया था उसमें हमने कंडक्टिंग पाथवे ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ा था कि जो हार्ट बीट जनरेट होती है, पोटेंशियल जनरेट होती है, वो कहाँ होती है बेटा? ऐसे नोड में विच इज सेड टू बी नेचुरल पेस मेकर विच इज लोकेटेड हेयर. Here the natural pacemaker is located. This is the right portion of right auricle and this is said to be SA node. SA node is said to be natural pacemaker and it is composed of specialized cardiac muscle or nodal musculature. Natural pacemaker we already discussed in previous segment, and this SA node generate potential which reaches to the auricular wall in various direction, but here another nodal tissue is present and this is said to be AV node. Here we discuss about AV node. ये कुछ टर्म्स इस पूरे साइक्लिकल इवेंट में यूज होंगे. तो अब तक का जो भी आपने इंटरनल सेक्शन पढ़ा था ह्यूमन हार्ट का, वो सभी टर्म्स, वो सभी वॉल्व, नोडल टिश्यू, वो सब टर्म्स इस कार्डिक साइकिल में यूज होने वाले हैं. तो अब ध्यान से देखें आप कि जो पोटेंशियल है वो कौन जनरेट कर रहा है बेटा? SA नोड. इसका मतलब SA नोड सबसे पहले पोटेंशियल किस चैम्बर को सेंड करता है? ऑरिकल को या वेंट्रिकल को? तो डेफिनेटली इट सेंड पोटेंशियल टू द ऑरिकल. दैट्स व्हाई फर्स्ट contraction initiated in auricle, that means cardiac cycle initiated with the contraction of auricle. और जैसे ही contraction initiate होगा auricle में, it further send blood to the ventricle. Now come over the auricular contraction or auricle systole. We use term for contraction is systole. The first event is auricular systole. Now come over the first event. It is operated under three heading. It is operated under three heading. Now come over the term auricular systole. Auricular सिस्टोल नाम से क्लियर हो रहा है आपको, जहाँ पे हार्ट की कौन सी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? सिस्टोल. वेदर द ऑरिकल इज राइट और लेफ्ट ऑरिकल. नाउ राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा रिस्पेक्टिवली फ्रॉम प्री केवल एंड पोस्ट केवल, वेर एज लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन. तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन कैसे ब्लड को लेके आ रही हैं बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही हैं. और जो यहाँ पे आपको सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा दिख रही है, ये कैसे ब्लड को लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. तो नाउ this auricle undergo contraction and send respectively oxygenated and deoxygenated blood to the ventricle. कहाँ पे आ गया ब्लड? अब वेंट्रिकल में. तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल? तो ऑरिकुलर सिस्टोल पहले क्यों होता है यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि द पोटेंशियल जनरेटेड बाय SA नोड फर्स्ट रीच टू द ऑरिकुलर वॉल रादर देन वेंट्रिकुलर वॉल, बिकॉज वेंट्रिकल वॉल रिसीव पोटेंशियल अक्रॉस AV बंडल्स एंड पुरकिंजी फाइबर्स. तो वहाँ तक पोटेंशियल पहुँचने में टाइम लगता है. दैट्स व्हाई कार्डिक साइकिल बिगिन विद द ऑरिकुलर सिस्टोल. तो नाउ कम ओवर द व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग auricular systole. So now come over auricular systole. During auricular systole ब्लड आ चुका है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कौन कौन से इवेंट होंगे? दिस व्हेन ऑरिकल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट टू प्रिवेंट बैक फ्लो. अब जैसे ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बेटा, तो बैक फ्लो ना हो जाए, ब्लड वापस से कहाँ ना चला जाए? वेना केवा में ना चला जाए या लेफ्ट पल्मोनरी वेन में ना चला जाए. तो क्या होता है? तो फर्स्ट ऑरिकुलर सिस्टोल बिगिंस एंड it lead to auricular systole undergo contraction. Auricular systole. During this event blood
whether the blood is oxygenated or deoxygenated. Deoxygenated and oxygenated respectively in right auricle and left auricle. Blood is pumped into ventricle. ब्लड कहाँ जा चुका है बेटा? वेंट्रिकल में. और क्या होता है ऑरिकुलर सिस्टोल में? अब ब्लड जाएगा उससे पहले कौन से वॉल्व खुलेंगे? दिस लीड टू ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, विच इज रिस्पेक्टिवली इन राइट हाफ इज ट्राइकस्पिड whereas in left half is bicuspid. तो सेकेंड, इट लीड टू ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व, auriculoventricular valves, whether the valve is right auriculoventricular valve or left auriculoventricular valve, which is technically said to be tricuspid and bicuspid due to presence of 3 and 2 flap respectively. Now blood is sended to ventricle, but when auricle undergo contraction, somehow blood undergo backflow. To prevent backflow, the valve of Eustachius and valve of Thebasius get closed. Now valve of Thebasius valve कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस. एंड valve of Eustachius, which is present in the opening of inferior vena cava, that is post caval. Valve of Thebasius and valve of Eustachius get closed to prevent backflow. नेक्स्ट इवेंट और क्या नजर आ रहा है आपको? अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो सुपीरियर वेना केवा है उसकी ओपनिंग पे कोई वॉल्व नहीं होती, पल्मोनरी वेन की ओपनिंग पे भी कोई वॉल्व नहीं होती. जब ऑरिकल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो द वॉल ऑफ ऑरिकल व्हेन अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन इट लीड टू स्क्वीजिंग एंड इटसेल्फ इट्स ओपनिंग गेट क्लोज. मतलब अपने आप जैसे ही वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती जाएंगी इट लीड टू स्क्वीजिंग ऑफ देयर ओपनिंग, इसकी ओपनिंग स्क्वीज होती जाएगी और अपने आप इसकी ओपनिंग क्या हो जाएगी? क्लोज. नाउ ओपनिंग ऑफ superior vena cava and pulmonary vein gets closed due to contraction in myocardium of auricular wall. ऑरिकुलर वॉल की मायोकार्डियम जितनी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इट्स ओपनिंग गेट क्लोज ड्यू टू इट्स स्क्वीजिंग, स्क्वीज हो जाएगा, सिकुड़ जाता है ताकि बैकफ्लो ना हो. तो दीज आर द मेजर इवेंट दैट इज ऑपरेटेड ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल. एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब तक ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब वेंट्रिकल चैम्बर किस स्टेज में है बेटा? रिलैक्स कंडीशन में. इट्स वॉल आर इन रिलैक्स कंडीशन, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज द वेव of potential generated by SA node reach to AV node, or this potential not able to reach to the wall of ventricle. That's why the chamber of ventricle, the left ventricle and right ventricle are in relaxed state. That means during auricular systole ventricles are in diastole. What do you mean by diastole? Relaxed condition. So again I recap here, auricular systole ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड को कहाँ पुश कर देती है बेटा? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में. इधर द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड. इट्स लीड टू ओपनिंग ऑफ एवी वॉल, राइट एवी एंड लेफ्ट एवी. सेकेंड, टू प्रिवेंट बैकफ्लो, क्योंकि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करी एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन इज फीबल, बहुत माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है क्योंकि इसको ब्लड को पंप कहाँ करना है? सिर्फ वेंट्रिकल को. तो दैट्स वाई टू प्रिवेंट बैकफ्लो द वॉल्व लोकेटेड इन पोस्ट कैवल एंड इन कोरोनरी साइनस गेट क्लोज एंड फर्दर अदर ओपनिंग इवन गेट स्क्वीज आउट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन ऑरिकुलर वॉल. तो दीज आर द हैपनिंग, या हम कहेंगे दीज आर द इवेंट विच इज ऑपरेटेड ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल. नाउ कम ओवर द अदर इवेंट ऑपरेटेड
in during cardiac cycle and this auricular systole continue for 0.1 सेकेंड. कितने टाइम के लिए चलती है ये? 0.1 सेकेंड. इसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा मेजर. दिस इज ऑपरेटेड फॉर 0.1 सेकेंड. नाउ कम ओवर द अनदर इवेंट दैट इज ventricular systole. Now come over the ventricular systole. Now come over the second event, ventricular systole. ventricular systole नाम से क्लियर है, ब्लड अब कहाँ आ चुका है बेटा? वेंट्रिकल में आ चुका है. और क्या क्या इवेंट होने वाले हैं? तो नाउ द सेकेंड इवेंट ventricular systole and this is very forceful contraction इन द मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल. क्योंकि फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन की डिमांड दैट इसीलिए है कि वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर सके ऑल बॉडी पार्ट्स के पास या लंग्स के पास. किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए. एंड दिस वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑपरेटेड फॉर 0.3 सेकेंड. कितने सेकेंड के लिए चलती है ये? 0.3 सेकेंड के लिए. This is operated for 0.3 second. Now come over the event और processes और the क्या क्या event होंगे जब blood कहाँ आ चुका है बेटा? ventricle में आ चुका है. Now blood reach to the right and left ventricle after following auricular systole which continue for 0.1 second, just 0.1 second. Now the blood, this deoxygenated blood sended to the pulmonary trunk or pulmonary artery to the lungs for oxygenation, and whereas left ventricle which receive oxygenated blood send it to major artery that is aorta to all body parts for systemic circulation. अब पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप करना है लेफ्ट वेंट्रिकल को और लंग्स के पास ब्लड को भेजना है राइट वेंट्रिकल को. दैट्स वाई दिस ventricular systole is forcible. This involve forcible contraction. That's why heartbeat is already मैंने एक टर्म यूज़ किया था ventricular heartbeat और apex heartbeat कि जो हमारा हार्ट बीट होता है उसमें सबसे ग्रेट कॉन्ट्रैक्शन किस वॉल में होती है? मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल, क्योंकि इसको ब्लड को दूर तक सेंड करना है. तो नाउ द प्रोसेस ऑपरेटेड इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आया वैसे ही टू प्रिवेंट बैक, क्योंकि अब वेंट्रिकल की वॉल बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है तो वापस से ब्लड ऑरिकल में ना चला जाए. वापस से ब्लड कहाँ ना चला जाए? ऑरिकल में. तो इसकी बैक फ्लो को रोकने के लिए एवी वॉल को इमीडिएट क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा. मतलब दिस वेंट्रिकुलर सिस्टोल इनिशिएटेड as soon as the wall tricuspid and bicuspid get closed and this closure produce first heard sound lub. Now come over the event operated during ventricular systole. Now blood reach to the ventricle by following ventricular systole. अब blood कहाँ आ चुका है बेटा? वेंट्रिकल में. तो क्या होगा? First it lead to it is initiated and lead to closure of AV valve. AV valve either tricuspid, both tricuspid and bicuspid. Bicuspid is also said to be mitral valve. It lead to closure of AV valve and generate first heart sound. Generate first heart sound. First heart sound which is simply represent with symbol S1. Represent with symbol S1. S1 means S stand for sound and first heart sound initiated with closure of AV valve. और किस फेज में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा नेट का, कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो कार्डिक साइकिल के किस इवेंट में ऑपरेट होती है? तो इट इज ऑपरेटेड इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल व्हेन वेंट्रिकल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड टू प्रिवेंट बैक फ्लो एवी वॉल्व गेट क्लोज एंड इट प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड लब. लब और कुछ बुक में आपको लिखा मिलेगा LUB, लब साउंड प्रोड्यूस करता है. सेकेंड, अब आप देखें कि एवी वॉल क्लोज हुआ और कौन सा हार्ट साउंड प्रोड्यूस किया बेटा? लब. नाउ दिस ब्लड सेंडेड टू
pulmonary artery and send it to aorta for systemic circulation and pulmonary circulation. Now यहाँ पे जो दोनों की ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग में कौन से वॉल्व प्रेजेंट थे बेटा? सेमिल्यूनर वॉल्व. इसका मतलब ब्लड को सेंड करना है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को, तो कौन से वॉल्व की ओपनिंग होगी? सेमिल्यूनर वॉल्व. तो नाउ इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल इट्स लीड टू ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व. दो तरह के सेमिल्यूनर वॉल्व पढ़े थे आपने. फर्स्ट वन इज पल्मोनरी आर्टरी सेमिल्यूनर वॉल्व, शॉर्ट में लिख देती हूं मैं यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी सेमिल्यूनर वॉल्व एंड एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व. दोनों वॉल्व क्या हो चुके हैं? ओपन. तो ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व टू फर्दर send blood to the lungs and all body parts respectively via pulmonary arteries, pulmonary artery or pulmonary trunk and aorta. क्लियर? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा चुका? ऑल बॉडी पार्ट्स के पास. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा चुका? लंग्स के पास. किसके थ्रू बेटा? पल्मोनरी आर्टरी. तो ये थी वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब आप देखें कि जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे आपकी ऑरिकल किस कंडीशन में है? रिलैक्स कंडीशन में. तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल अनदर कंडीशन आई राइट हियर, ऑरिकल आर इन रेस्टिंग फेज और ऑरिकल्स आर इन डायस्टोल, दैट इज इन रिलैक्स कंडीशन. क्लियर? तो सेकेंड इवेंट क्या था बेटा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ऑरिकुलर सिस्टोल में कोई हार्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ. वेंट्रिकुलर सिस्टोल इनिशिएटेड विथ फर्स्ट हार्ट साउंड एंड फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल रिस्पेक्टिवली ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड इन राइट एंड लेफ्ट पोर्शन. यहाँ पे लोकेटेड है हमारे एवी वॉल और उसकी क्लोजर से कौन सा फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ? लब. ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, जैसे सेमिल्यूनर वॉल ओपन हुए ब्लड कहाँ सेंड कर दिए गए? लंग्स के पास और ऑल बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड को पंप कर दिया हमारे वेंट्रिकल ने. तो ये बहुत ही फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड इट इज ट्रिगर्ड व्हेन द पोटेंशियल रीच टू द मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल विच इज द थिकेस्ट मायोकार्डियम इन लेफ्ट वेंट्रिकल. मैंने बताया था आपको लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम्स थिकर होती है एंड दे नीड मैक्सिमम पोटेंशियल टू सेंड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स. इफ हार्ट नॉट एबल टू सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड to all body parts, then it lead to heart failure. Now the third event is joint diastole. Now come over the third event. तो first event कौन सा प्रोड्यूस पढ़ा आपने बेटा? ऑरिकुलर सिस्टोल. सेकेंड इवेंट क्या पढ़ा आपने? वेंट्रिकुलर सिस्टोल विच कंटिन्यू फॉर 0.3 सेकेंड. नाउ द नेक्स्ट event, the last event of cardiac cycle, joint diastole और ventricular diastole. अब ध्यान से देखें कि वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप कर दिया है कहाँ पे बेटा? लंग्स के पास और बॉडी पार्ट्स के पास. इसका मतलब वेंट्रिकल क्या हो चुकी है? रिलैक्स हो चुकी है. और रिलैक्स के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? डायस्टोल. क्लियर? तो नाउ कमली वी यूज टर्म वेंट्रिकल डायस्टोल. लेकिन आप देख रहे हैं कि जब हमारी वेंट्रिकल डायस्टोल में है उसी टाइम पे यहाँ पे ब्लड आ तो रहा है लेकिन ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही. दैट मीन्स हमारी ऑरिकल भी किस कंडीशन में है? रिलैक्स कंडीशन में है. तो रेदर देन वी यूज टर्म वेंट्रिकल डायस्टोल वी यूज टर्म जॉइंट डायस्टोल. मीन्स ऑल 4 चैम्बर आर इन रिलैक्स कंडीशन. नाउ द थर्ड इवेंट ऑपरेटेड इन कार्डियक साइकिल इज जॉइंट डायस्टोल. कुछ बुक में आप इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल के नाम से पढ़ते हैं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को सेंड कर चुका तो नाउ वेंट्रिकल आर इन रिलैक्स कंडीशन एंड वी यूज टर्म वेंट्रिकुलर डायस्टोल. बट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल इवन ऑरिकल रिसीव ब्लड को रिसीव तो कर रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा. दैट मीन्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल ऑरिकल वॉल इटसेल्फ इन रिलैक्स कंडीशन, हेंस वी यूज टर्म जॉइंट डायस्टोल. तो नाउ द थर्ड इवेंट ऑपरेटेड इज जॉइंट डायस्टोल विच कंटिन्यू फॉर 0.4 सेकेंड. कितने टाइम के लिए चलती है बेटा ये? 0.4 सेकेंड. ऑल चैम्बर्स आर इन रिलैक्स कंडीशन. नाउ द इवेंट ऑल चैम्बर्स आर इन रिलैक्स कंडीशन. लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखें
ब्लड सेंड हो चुका, सेमील्यूनर वॉल्व ओपन हो चुका। अब जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर चुका है, इसका मतलब यहाँ पर दोबारा से बैक फ्लो होके ब्लड आ सकता है, वापस से वेंट्रिकल में आ सकता है ये ब्लड। तो इस बैक फ्लो को चेक करने के लिए अब हमें इस सेमील्यूनर वॉल्व की क्या करानी पड़ेगी, क्लोजिंग करानी पड़ेगी। तो जॉइंट डायस्टोल इनिशिएटेड विथ क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व एंड दिस प्रोड्यूस सेकेंड हार्ट साउंड विच इज वेरी इंटेंस with high frequency, and this sound is said to be done. Now come over joint diastole. All chambers of heart are in relaxed condition. Second event operated during joint diastole. During this event, during joint diastole या during initiation of joint diastole is with closure of semilunar valve, and these valves are located at opening of pulmonary artery and aorta. So the initiation of joint diastole is related with closure of semilunar valve, and the closure of semilunar valve, whether it is located at the opening of pulmonary artery and located at the opening of aorta, with closure of semilunar valve generate second heart sound, second heart sound which is represent with symbol S2, and the sound is dup. क्लियर। तो ये थी। और जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है कि अब ये क्लोजर हो चुके वॉल्व और ब्लड कहाँ पंप हो चुका है, लंग्स के पास और बॉडी पार्ट्स के पास। अब बॉडी पार्ट से यहाँ पे कैसा ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, और लंग से यहाँ पे कैसा ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड। मतलब ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल इवन ब्लड स्टार्ट फिलिंग इनटू द ऑरिकल चैम्बर। नाउ द अनदर इवेंट ऑपरेटेड ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ब्लड स्टार्ट फिलिंग into auricles. So these are the major event. Again I recap here. First event is auricular systole which continue for 0.1 second, ventricular systole 0.3 second and joint diastole 0.4 second. Ventricular systole में first heart sound produce होता है love due to closure of AV valve, and during joint diastole initiated with the second heart sound dub, and it is associated with closure of semilunar valve. So these are the major event. Now come over the कि हमारे जो कार्डिक साइकिल ऑपरेट हो गए, आपने देखा कि हमारी हार्ट की चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल एंड इट कंटिन्यू फॉर 0.8 सेकेंड। तो कार्डिक साइकिल का जो पूरा का पूरा इवेंट है ये कितने टाइम के लिए चलता है बच्चों, 0.8 सेकेंड। नाउ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू निट, कि यहाँ पे थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लें कि कितने टाइम के लिए हमारा ऑरिकल और नेट स्पेशल कॉन्सेप्ट कर लेते हैं हम। तो हमारा कार्डिक साइकिल विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 3 इवेंट, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल, एंड इट इज कंटिन्यू फॉर 0.8 सेकेंड, मतलब लेस देन 1 सेकेंड के लिए चलती है ये हमारी कार्डिक साइकिल। अब आ जाती है ऑरिकल सिस्टोल। ऑरिकल कितने टाइम के लिए सिस्टोलिक कंडीशन में रहता है, तो ऑरिकल सिस्टोल या हम कहें कि हमारे जो ऑरिकल हैं वो कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बेटा, 8 सेकेंड में से 0.1 सेकेंड के लिए हमारी ऑरिकल किस कंडीशन में रहती है, सिस्टोलिक कंडीशन में। एंड ऑरिकल डायस्टोल, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, कैलकुलेट करेंगे हम। ऑरिकल सिस्टोल कितने टाइम के लिए चली बेटा, 0.1 सेकेंड। अब आप देखें जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में था तो हमारा जो ऑरिकल था वो किस कंडीशन में था, रिलैक्स कंडीशन। मतलब जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो हमारा जो ऑरिकल था वो किस कंडीशन में था, रिलैक्स कंडीशन। मतलब 0.3 सेकेंड के लिए यदि वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रही है तो ऑरिकल किस कंडीशन में है, डायस्टोल कंडीशन। किस कंडीशन में है, डायस्टोल। तो ऑरिकल डायस्टोल 0.3 सेकेंड प्लस
अब आप देखिए जॉइंट डायस्टोल में ऑल चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स कंडीशन, मतलब हमारा जब जॉइंट डायस्टोल चला तब भी हमारी ऑरिकल किस कंडीशन में थी, डायस्टोल, दैट इज इन रिलैक्स कंडीशन। तो नाउ 0.4 सेकेंड, तो इट इज अप्रॉक्सीमेट 0.7 सेकेंड, मतलब आउट ऑफ कार्डिक साइकिल हमारा जो ऑरिकल है वो 0.1 सेकेंड के लिए किस कंडीशन में रहता है बेटा, सिस्टोल, और डायस्टोल कंडीशन में कितने सेकेंड के लिए रहता है, 0.7 सेकेंड। क्लियर? नाउ कम ओवर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और डायस्टोलिक कंडीशन इन वेंट्रिकल। तो ऑरिकल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ventricular systole. The second event which is the most important event, ventricular systole, कितने टाइम के लिए चलती है, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। नाउ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, हमारा वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए डायस्टोल और रिलैक्स फेज में रहता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, रिलैक्स कंडीशन में, रिसीविंग कंडीशन में। जब हमारा ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो हमारा वेंट्रिकल किस कंडीशन में था, when auricle undergo contraction, when auricle undergo contraction तब हमारा वेंट्रिकल किस कंडीशन में था बेटा, रिलैक्स कंडीशन में। इसका मतलब ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल आवर हार्ट इन डायस्टोल कंडीशन 0.1 सेकेंड, and during joint diastole ventricle itself, this joint diastole technically said to be ventricular diastole। तो कई बुक में यदि ventricular diastole दिया है तो आप कंफ्यूज मत होएं, क्योंकि वो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ऑरिकल में ब्लड आ तो रहा है लेकिन ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल कितने टाइम के लिए चलती है बेटा, 0.4, और इस फेज में हमारी वेंट्रिकल किस कंडीशन में है, रिलैक्स कंडीशन में है, तो 0.4 सेकेंड। तो टोटल कितने सेकेंड हो गया, 0.5 सेकेंड। तो आपसे पूछा जाए इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो कार्डिक साइकिल चलता है जिसमें हमारी ऑरिकल, वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली ओपन, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स होती रहती हैं, विच कंटिन्यू फॉर 0.8 सेकेंड। आउट ऑफ 0.8 सेकेंड जो हमारा ऑरिकल सिस्टोल है वो कितने टाइम का चल रहा है बेटा, 0.1 सेकेंड, और जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो कितने टाइम के लिए चल रहा है, 0.3। और जो हमारा डायस्टोलिक कंडीशन देखें तो ऑरिकल कितने टाइम के लिए रिलैक्स कंडीशन में रहता है, कंप्लीट कार्डिक साइकिल में 0.7 सेकेंड के लिए, और कंप्लीट कार्डिक साइकिल में हमारा वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए रिलैक्स करता है, 0.5 सेकेंड। नाउ कम ओवर द हार्ट साउंड, डिफरेंसेस बिटवीन हार्ट साउंड। Now come over the differences between heart sound, which is the most important frequent asking question in your NEET exam। तो हार्ट साउंड आपको क्लियर हो गया होगा कार्डिक साइकिल में, ड्यू टू अपीयर ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी एंड सेमील्यूनर वॉल रिस्पेक्टिवली। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज symbolized by S1, whereas second heart sound is symbolized by S2, and respectively our heart produce first heart sound lub and second sound is dub, lub dub, and this heart sound is heard by an instrument, and that instrument is said to be stethoscope। स्टेथोस्कोप आपने देखा ही होगा, स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट आपने नेक में देखा होगा डॉक्टर्स के, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हार्ट साउंड को सुना जाता है। तो स्टेथोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू हियर हार्ट साउंड। नाउ दिस हार्ट साउंड, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में यदि आपके नीट के लिए बोलूं कि सिम्बोलाइज्ड फॉर्म में, यदि हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो लब इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, तो आपको दिख रहा है कि इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, कम है, लेकिन लंबे टाइम तक ये हार्ट साउंड सुनाई देता है। मतलब जब हम हार्ट साउंड को सुनते हैं तो लब इज कंटिन्यू फॉर लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू डब, बट द इंटेंसिटी ऑफ डब इज इंटेंस, मतलब इट इज ऑफ हाई पिच, मतलब तेजी से सुनाई देने वाला। जब स्टेथोस्कोप से सुना जाए तो लब की फ्रीक्वेंसी कम होती है और डब की फ्रीक्वेंसी इंटेंस होता है, ये थोड़ी इंटेंसिटी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्लियर हाई पिच इंटेंसिटी होती है। एंड दिस इज फोनोकार्डियोग्राफी, जो कार्डियोग्राफी है, और इसकी पिक्चर फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हियर दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट साउंड। हार्ट साउंड is known as phonocardiography। phonocardiography मतलब ये जो कार्डियोग्राफी है
ये यदि इस तरह के इमेजेस अपीयर नहीं हो रहे, इसका मतलब वॉल्व में क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, बैक फ्लो को वॉल्व प्रिवेंट नहीं कर पा रही। तो फोनोकार्डियोग्राफी एक हम कह सकते हैं टू बिहेव एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं, जैसे ईसीजी के थ्रू हम पता लगाते हैं कि हार्ट कार्डिक अरेस्ट होने वाला है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होने वाला है, उसी तरह से वॉल्व की जो क्लोजर हो रही है, प्रॉपर क्लोजर हो रही है, या हार्ट साउंड प्रॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ पैथोजेनिक प्रॉब्लम है या कुछ एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस अराइज हो रही है हमारे हार्ट में, विच इज़ ऑल्सो डायग्नोज बाय फोनोकार्डियोग्राफी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लब में इट इज दिस साउंड इज डल प्रोलॉन्ग्ड, लंबे टाइम तक चलता है, लंबे टाइम तक सुनाई देता है, वेयर एज द इंटेंसिटी ऑफ डब इज शार्प, शॉर्टर टाइम एंड हाई पिच, बहुत हाई पिच की बिल्कुल क्लियर कट सुनाई देता है। एंड नाउ दिस हर्ट साउंड, फर्स्ट हर्ट साउंड इज इनिशिएटेड और ऑनसेट या हर्ड इन ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ऑनसेट। व्हाट डू यू मीन बाय वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ऑनसेट, कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहला हमें हर्ट साउंड कौन सा सुनाई दिया, लब, और जैसे ही हमारा डायस्टोलिक इवेंट स्टार्ट हुआ, जब हमारे हार्ट के चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं, तो हमें कौन सा हर्ट साउंड सुनाई दिया, डब। And the last, it is caused by closure of AV valve, either the valve is right or left, and again it is arise due to closure of semilunar valve। तो ये था हमारा कार्डिक साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट बीट एंड पल्स में डिफरेंस। थैंक यू।